हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। जैसे कि बाकी एग्ज़ाम थी 60 मार्क्स का रहेगा एंड 2.5 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 3 सेक्शन यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट में रीडिंग है, सेकंड में राइटिंग और ग्रामर का पार्ट है और थर्ड वाला आपका लिटरेचर का पार्ट रहेगा। रीडिंग स्किल्स में फर्स्ट पार्ट है, ट्रैवलिंग opens our mind to new culture, ideas, and way of life. When we travel, we learn to adjust, cooperate, and respect differences. Travel helps us become confident and independent. It also teaches us problem solving skills as we face new situations. Many great leaders and writers have gained inspiration through travel. Moreover, traveling allows us to understand the beauty and diversity of nature, which help us develop a sense of responsibility towards the environment. Meeting people from different backgrounds makes us more tolerant and broad minded. Travel also gives us a break from our daily routine and refreshes our mind and body. Thus, traveling is not only a source of enjoyment but also an important means of learning and personal growth. Traveling also helps us understand the real world beyond books and classrooms. It encourages curiosity and a spirit of exploration, making learning more interesting and practical. Through travel, we learn to value simplicity, develop empathy for others, and become more adaptable in life. अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ट्रैवलिंग ओपन न्यू माइंड्स टू, किस चीज़ को वो जो है खोलती है? न्यू कल्चर एंड आइडियाज़ के लिए ओपन करती है अपने माइंड्स को। वन क्वालिटी डेट ट्रैवल डेवलप इन अ पर्सन इज, कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। ट्रैवल हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह की जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, क्योंकि न्यू सिचुएशन से आप एक्सपोज होते हैं, न्यू सिचुएशन से मिलते हैं हर रोज। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स मॉडिफाई वन सेल्फ, तो मॉडिफाई वन सेल्फ का मतलब क्या है? एडजस्ट करना। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रैवल मेक्स अ पर्सन डिपेंडेंट, तो ये फॉल्स है, वो इंडिपेंडेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन ट्रैवल इंस्पायर पीपल, तो ट्रैवल जो है लोगों को किस तरह से इंस्पायर कर पाता है? तो उनको जो है न्यू आइडिया और एक्सपीरियंसेस देते हैं। ठीक है, न्यू आइडियाज़ बाय गिविंग देम न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यह होता है मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे। वट काइंड ऑफ स्किल डज ट्रैवल टीच अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग जो है किस तरह की उनके अंदर जो है वो डेवलप करते हैं चीज़ें। तो क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और साथ में ही फेस जो चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये सब आप लिख सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ है, माउंटेनियरिंग इज़ अ चैलेंजिंग एडवेंचर, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग एडवेंचर ये है स्पोर्ट। क्लाइंबर्स नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज एंड डिसिप्लिन। प्रॉपर ट्रेनिंग, टीम वर्क एंड इक्विपमेंट आर असेंशियल फॉर सक्सेस। Many climbers say that mountaineering teaches patience and respect for nature. It also helps climbers develop mental health as they must remain calm and focused in difficult situations and risky situations. While climbing mountains, they learn the importance of planning, perseverance, and trust in their teammates. Mountaineering encourages a spirit of adventure and self-confidence, as reaching the summit gives a great sense of achievement. At the same time, climbers understand that nature is powerful and unpredictable, which makes them humble and responsible. Thus, mountaineering is not just a sport, but a life-shaping experience that builds character, discipline, and respect for natural world. Moreover, mountaineering creates awareness about the beauty of nature and the need to protect the environment. Overall, mountaineering inspire people to face difficulties with determination and never give up in the life. So first question है अब इस पैराग्राफ का, क्लाइंबर नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज फॉर माउंटेनियरिंग, तो कौन सी क्वालिटीज उन्हें चाहिए? तो फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज एंड डिसिप्लिन। टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट इन माउंटेनियरिंग, क्यों यहाँ पर ज़रूरत होती है? क्योंकि वो क्लाइंबर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। माउंटेनियरिंग टीचेज क्लाइंबर को क्या क्या सिखाते हैं?
पेशेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज जिसका मीन्स ब्रेवरी, तो करेज. सो यहाँ पर आ जाएगा आपका करेज. नाउ विच वैल्यू इज हाईलाइटेड इन द पैसेज, तो वैल्यू जो है कौन सी यहाँ पर हाईलाइट की गई थी, डिसिप्लिन. तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर. उसके बाद है हाउ डज माउंटेनियरिंग हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ को जो है कैसे डेवलप करते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो माउंटेनियर होते हैं या जो क्लाइंबर होते हैं, दे मस्ट रिमेन, उन्हें क्या होना होता है, रिमेन रहना होता है. क्या, कैसे रहना होता है, काम, पेशेंट एंड फोकस्ड, और फोकस्ड इन जो भी उनकी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, इन चैलेंजिंग कंडीशंस. तो इसीलिए उसकी वजह से उनका माइंड जो है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है उनकी बिल्कुल सही हो जाती है. उसके बाद आपका क्रिएटिव राइटिंग और ग्रामर का पार्ट है. तो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट आपको खुद से करना होगा. इसमें किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, यू हैव रीड द लेसन कंक्यूरिंग द सबमिट राइट अ डायरी एंट्री. इसमें लिखनी है कि हाउ यू फेल्ट आफ्टर रीडिंग द क्लाइंबर अचीवमेंट. क्लाइंबर की जो अचीवमेंट्स थी वो देखने के बाद, वो पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ. देन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है आपके एक्सपीरियंस का ओवर ट्रेन जर्नी. डिस्क्राइब द साइट, साउंड एंड फीलिंग यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी. तो क्या क्या आपने फील किया, देखा, साउंड कैसी थी, फीलिंग कैसी थी, सब डिटेल इंक्लूड करनी है. आपके लोग थे जो आसपास, सीनरी थी जो आउटसाइड, एटमोसफेयर इनसाइड द ट्रेन, तो सब आपको यहाँ बताना है. अब यहाँ पर लेटर लिखना है. एक है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर प्रिंसिपल को लिखना है स्कूल में परमिशन करने के लिए, ब्रेव सोल्जर ट्रिब्यूट प्रोग्राम आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए. और इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है यू लर्न फ्रॉम द रानी अबक्का. जो भी चीज़ें आपने डिस्क्राइब की, आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आपने क्या क्या इस लेसन से सीखा, वो सब. उसके बाद आता है आपका ग्रामर का पार्ट. नाउ चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब. द क्लाइंबर डिड नॉट डिस्पाइट डिफिकल्टीज. तो गिव अप, वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं. फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो द सोल्जर आर ऑनर्ड एवरी ईयर. चूज द करेक्ट एडजेक्टिव. रानी अबक्का वॉज अ ब्रेव रूलर. ठीक है. नाउ री राइट इन फ्यूचर. फ्यूचर में इसको लिखना है. तो फ्यूचर में आपका शेल और विल आता है, और ये थर्ड पर्सन है तो विल होगा. शी विल लीड हर आर्मी. ठीक है, सिर्फ और कुछ नहीं आया. यहाँ से जो एस था वो किसका था, डू और डज का लगा था, तो वो हट गया और उसकी जगह विल आ गया. चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पर क्या होगा, ही सेड. अब उसके बाद क्या आता है, डेट. वी चेंज हो जाएगा, हमेशा थर्ड पर्सन में चेंज हो जाते हैं. डेट, दे, वुड, विल जो है विल वुड में और शेल शुड में. वुड प्रोटेक्ट. अब यहाँ पर दे बन गया तो वी से अवर बना था, दे से क्या बनेगा, देयर. दे वुड प्रोटेक्ट देयर कंट्री. ये टी है, TRY. नाउ यूज द करेक्ट कंजक्शन. यहाँ पर जैसे कि ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यूड क्लाइंबिंग, बट या फिर येट, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं. वन वर्ड आंसर. अ पर्सन हु क्लाइंब माउंटेन्स. तो उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेनियर. माउंटेनियर. नाउ अब आपका लिटरेचर से एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पढ़ना है, आंसर्स देने हैं. रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट. पोएट्री. द रेल रोड ट्रैक is miles away and the day is loud with voice speaking, yet there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shrinking. Phrase the day is loud with voice speaking is an example of. तो ये किसका एग्जाम्पल है, personify वहाँ पे उसको किया गया है. In the given question find out the alternative. Alternative find out करना है which will replace the question mark. जो question mark को replace करेगा, जैसे कि ट्रेन विशल साउंड हो गया,
तो रेल रोड जो ट्रैक है वो क्या होगा, डिस्टेंस। यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। फर्स्ट दिया है द एटमोसफेयर ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे जो एटमोसफेयर है वो नॉइजी होता है, शोर ज़्यादा होता है। द डे इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग लाउड विद वॉइस स्पीकिंग, सो डेट इज़ ट्रू। तो दोनों ही ट्रू है और आर जो करेक्ट एक्सप्लेन किया गया है आर में ए को। डिस्पाइट द डिस्टेंस वट साउंड डज द स्पीकर शुड हेयर, तो कौन सी जो है साउंड जो उसको सुनाई देती है। सो विसल ऑफ द ट्रेन श्रिंकिंग, तो ये साउंड जो है उसे सुनाई देती है। वट माइट द ट्रेन विसल सिंबलाइज फॉर द स्पीकर, तो वो जो है उसके लिए क्या सिंबलाइज करती है यहाँ पर, तो वो जो सिंबलाइज करती है उनके लिए कि वो ट्रैवल करना चाहता है, डेट मीन्स लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल और एस्केप, या इसमें से आप कोई भी एक बता सकते हैं, और एक्साइटमेंट हो सकता है दूर की प्लेसेस के लिए। सेकंड आपका जो है टेक्स्ट बुक में से ही दिया है, सेकंड पैराग्राफ भी। रानी अबक्का, आई नीड योर होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक उलाल स्ट्रोंगर, सिक्योर एंड फ्री। क्राउड, वी आर विद यू योर मैजेस्टी, विक्ट्री टू रानी अबक्का देवी। After coronation, Rani Abakka spoke to her husband, Veer Narasimha. Rani Abakka, I will stop paying tribute to the Portuguese. I will not sell them spices and cloth either. Veera Narasimha, isn't that a rather hasty decision? So यहाँ पर जो वर्ड आया है hasty, इसका मतलब क्या है, क्विक एंड रैश। सेम उसी तरह से जैसे ऊपर दिया था, रानी अबक्का वांटेड उल्लाल टू बी स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड फ्री, सो ये सही है। सी बिलीव्ड कॉर्पोरेशन फ्रॉम द पीपल वॉज नेसेसरी, तो ये भी क्या है, सही है। तो फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रानी अबक्का डिसाइड टू कंटिन्यू ट्रेडिंग विद द पुर्तगालीज, सो डेट इज फॉल्स, क्योंकि उसने बोला था कि उसे नहीं करनी है। नेक्स्ट है, वट वॉज रानी अबक्काज फर्स्ट एक्ट आफ्टर बीइंग क्राउंड क्वीन ऑफ उल्लाल, तो उसके बाद क्या था, सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, स्टॉप पेइंग टैक्सेस और ट्रिब्यूट, ठीक है, स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू पुर्तगालीज। तो ये हो जाएगा। नाउ हाउ डिड द क्राउड रिस्पॉन्ड टू रानी अबक्का एड्रेस एट हर, तो जब रानी अबक्का ने उनको बोला जो बोला था, उसके बाद जो क्राउड थी तो उन्होंने उनको किस तरह से सपोर्ट किया या क्या बोला। सो दे सपोर्टेड हर बाय लॉयल्टी एंड सपोर्ट। या फिर आप लास्ट वाला भी लिख सकते हो, उन्होंने बोला था विक्ट्री टू रानी अबक्का। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है। सूरज वांटेड टू नो द इनसाइड ऑफ द टनल, व्हाट कैरेक्टर ऑफ ट्रेट, तो यहाँ पर जो है कौन सा कैरेक्टर ये दिखाई देता है, ऑफ सूरज इज हाईलाइटेड हेयर, तो कौन सा कैरेक्टर है, क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कि क्या चल रहा है वो उसे जानना था, क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Sana described the glacier in Kashmir as being white and blue, so that is true. Now complete the following sentence by choosing the suitable reason. Rani Abakka got merchant ship built because she thought that it would be profitable trade with Arabia, or she wanted to transport the soldier, it would help them to attack Portuguese colony, or she wanted to explore new lands, तो she thought that it will be profitable trade था अरेबिया के लिए। इन द पोएम माई डियर सोल्जर, द पोएट क्रिएट अ सेंस, किस चीज़ की सेंस वो वहाँ पर बनाती हैं, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड की। वट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल, टनल के बारे में उन्होंने क्या बताया था यहाँ के, कि ही हैज़ लेंट इट टू द गवर्नमेंट। वट इज़ द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हाज ऑटोबायोग्राफी, तो क्या है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बोर्न अगेन on the
mountain. A story of losing everything and finding. उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है व्हाट इंस्पायर्ड द क्लाइंबर इन कंक्यूरिंग द समिट. फर्स्ट है डिटर्मिनेशन, गोल, पैशन फॉर क्लाइंबिंग. सेकेंड, हाउ द सोल्जर्स सर्व द नेशन अकॉर्डिंग टू माई डियर सोल्जर्स. प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, सेक्रीफाइस, सर्व सेल्फलेसली. Third, why is Rani Abakka remembered as a brave queen? Courage, leadership, resistance to foreigners. What is the central idea of the poem Travel? Learning through travel, broadening mind. How does the author pay tribute in homage to our brave soldiers? Respect and gratitude for soldiers' sacrifices. How does courage help in difficult situations? Help overcome fear and difficulties. What role does discipline play in success? Leads to success and self-control. देन उसके बाद में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोनों में से कोई भी एक आंसर देना है. फर्स्ट, जैसे डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ रानी अबक्का एंड एक्सप्लेन व्हाट स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम हर लाइफ. देन रानी अबक्का के बारे में बताना था. सो रानी अबक्का वॉज अ ब्रेव, स्ट्रॉन्ग willed and patriotic queen of Ullal, who fiercely resisted Portugalese rule. She was fearless in battle and never surrendered despite repeated attack by the powerful enemy. Rani Abakka showed sharp intelligence, leadership skill, and deep love for her land and people. She believed in unity and worked with local chief to defend her kingdom. Student can learn courage, determination, and self-confidence from her life. Her story inspires us to stand against injustice, protect our culture, and remain loyal to our duties even in difficult situations. और आप या तो ये कर सकते हैं या फिर ये वाला पार्ट, हाउ डज कंक्यूरिंग द समिट मोटिवेट यंग रीडर्स टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ. नाउ कंक्यूरिंग द समिट मोटिवेट यंग लीडर्स by showing that success comes through courage, discipline, and determination. The climbers face harsh weather, physical exhaustion, and fear, yet they move forward with confidence and teamwork. Their journey teaches that challenges are a part of life and can be overcome with hard work and a positive attitude. The lesson inspires young readers to believe in themselves, stay focused on their goals, and not give up when situations become difficult. It encourages them to treat obstacles as opportunities to grow stronger. तो इसके साथ ही आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.